चलेगा। भैया फोटो भी खींच करेक्ट ना दादा पूरा Part of West Africa, Côte d'Ivoire is the regional economic power, with a growth rate of around 7% stabilized per year for a decade. Its dynamism is reflected in the modernization of its infrastructure. Latest generation roads, ports, and airports make the country wants to be champion in the business world. Under the leadership of President Alassane Ouattara, the country wants to be a major technological and economic hub. At the heart of this ambition, VITIB, the technological showcase of West Africa, located in Grand-Bassam, a city listed as a UNESCO World Heritage Site. Here in a digital and industrial future, an African hub for digital sovereignty. VITIB, a strategic center for the development of technologies and biotechnologies in Africa, offers companies a modern, secure working environment that is conducive to innovation, an exceptional tax and customs framework. Setting up at VITIB means benefiting from competitive advantages. Startup incubator to support young, innovative companies. A hotel complex and modern services, facilitating the reception of international investors and entrepreneurs. Ideally located, VITIB is just 15 minutes from Félix-Houphouët. VITIB is also crossed by the Abidjan-Lagos Freeway, which divides it into two zones, A and B. VITIB is also just a few hours flight from Africa's major economic capitals, such as Lagos, Accra, and Dakar. Many companies have already set up shop there, taking it to development and expansion on the continent. VITIB is a 624-hectare area structured Zone A, 60 hectare, Zone B, 242 hectare. One businesses, schools, shopping centers, medical establishments. Zone C, 322 hectare. Each space is designed to meet the specific needs of companies, guaranteeing flexibility and efficiency, guarantee an optimal working environment, high-speed connectivity throughout the area, continuous power supply thanks to a dedicated Côte d'Ivoire Energies power plant, Tier 3 data centers, ensuring data security and availability, one-stop shop service. This is Dr. Manoj Mittal, Chairman, International Chamber of Healthcare and Medical Tourism. This type of program is very much needed. हम इस कंट्री के साथ काम कर रहे हैं. We help the patients traveling from this country to India, helping them with the right treatment, क्योंकि वहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. और हमें काफ़ी अच्छा लगता है जब ये लोग ट्रैवल करते हैं और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनकी जान बचाते हैं. तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ हम मिलके बहुत जल्दी एक इवेंट भी कर रहे हैं जिसमें वहाँ अच्छा अवेयरनेस आए. और मेडिकल टूरिज़्म सेक्टर में हमारे काफ़ी ग्रोथ हो रही है. हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का काफ़ी सहयोग मिला इस इंडस्ट्री को, एंड दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग. एंड एज अ चेयरमैन ऑफ द चैम्बर मेरा सारा प्रयास लगा है कि उन कंट्रीज़ में हम जाएं जहां से हम उन लोगों की हेल्प कर पाएँ जो करेक्ट ट्रीटमेंट की वजह से उनका नुकसान हो जाता है और हम लोग वहां पहुंच नहीं पाते. तो इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक माध्यम रहेगा जिसके थ्रू हम वहाँ मैसेज दे सकते हैं कि इंडिया इज़ अ गुड डेस्टिनेशन फॉर देम, नॉट ओनली फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट्स बट ऑल्सो मेडिकल टूरिज़्म, जिसमें एक टूरिज़्म भी है, उससे टूरिज़्म का भी बढ़ावा पड़ा. सर, मेडिकल टूरिज़्म से अभिप्राय क्या सारी विधाओं को इंडियन लेके चल रहे हैं या एलोपैथी? नहीं, हम मेडिकल टूरिज़्म में जिसको इमीडिएटली इमरजेंसी में अपना इलाज कराना है तो उसमें तो एलोपैथिक में उसका एडमिशन कराया जाता है. लेकिन बहुत सारे लोग अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं मेडिकल वेलनेस सेक्टर में. मेडिकल वेलनेस सेक्टर में आयुर्वेदा को काफ़ी हम लोग आगे तक ले जा रहे हैं. एंड इंडिया इज़ वेरी रिच इन दैट सेक्टर. आज से अगर हम अपने बाप दादाओं के ज़माने में जाएं तो उस वक्त तो हॉस्पिटल्स थे ही नहीं. उस वक्त तो सारा आयुर्वेदा ट्रीटमेंट था और वो एक तरीके से खो गया है. लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री के प्रयास से फिर उस सेक्टर को काफ़ी बूम मिल रहा है. हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी समय पहले से वहाँ जड़ी बूटियों के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ से भी मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया जाते हैं. तो आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप किस चीज़ों को देखते हैं?
नहीं, इस सेक्टर में जैसे मैंने बताया कि ये खो गया था, थोड़ा सा पीछे हो गया था, लेकिन अब इस सेक्टर में फिर से सब लोग उजागर हो गए हैं और इसको एक नया शेप मेडिकल वेलनेस दिया गया है। मेडिकल वेलनेस में वेलनेस सेंटर्स होते हैं जो उनको एक घरेलू उपचार देते हैं जो कभी हार्मफुल नहीं होते। हमारे पास वेलनेस में आयुर्वेदा में कैंसर ट्रीटमेंट से लेके ट्रांसप्लांट्स को भी हम लोग रोक देते हैं और हार्ट सर्जरीज को भी हम रोक देते हैं। मतलब हर तरीके का हमारे पास इलाज है उसमें जो ओवर रूल कर देता है एक सर्जरी को। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अदर से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सहयोग मिल रहा है, सेक्टर को काफ़ी ग्रोथ मिल रही है और इस सेक्टर में नॉट ओनली जॉब क्रिएट होंगी बट सेक्टर आगे बढ़ेगा तो इंडिया की भी ग्रोथ है उसमें और मेडिकल के साथ टूरिज्म भी है उसमें। अफ्रीका के किस देशों में आप काम कर रहे हैं? हम एंटायर अफ्रीका में काम कर रहे हैं। ये वाली जो कंट्रीज हैं कोटे दी आइवर, इसमें थोड़ा सा कम है क्योंकि ये दूर है कंट्री, वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी का कुछ इश्यूज है और डिस्टेंस ज़्यादा है और अवेयरनेस कम है। तो इन कंट्रीज़ में अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इवेंट भी जैसे मैंने बताया प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में और जिससे कि इस इंडस्ट्री को काफ़ी बूम मिलेगा। जैसे कि आपने कहा कि अभी शल्य चिकित्सा को टाला जा सकता है, अगर इनके जरूरत पड़ती है शल्य चिकित्सा की तो क्या वो भी आपसे बिल्कुल होती है जी। इस सब जैसे अफ्रीका में कॉमन आदमी आपसे कांटेक्ट करे कैसे इलाज करवाते हैं? सिंपल तरीका है उसका, मेडिकल टूरिज्म कैसे काम करता है। अगर उस पेशेंट्स के पास कुछ रिपोर्ट्स होती है जो डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट होती है, उससे हमें हेल्प मिलती है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हर छोटी से छोटी कंट्री में भी मिल जाती है, ब्लड टेस्टिंग के थ्रू जो टेस्टिंग होती है, ये MRI CT भी होता है उनके पास। हालांकि हर कंट्री में अफ्रीका की अगर हम जाएं तो MRI CT नहीं है, MRI तो नहीं है, तो वो आसपास की कंट्री में ट्रैवल करते हैं, फिर वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, किसी भी माध्यम से हमारे तक शेयर करते हैं। हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स में उसको शेयर करके डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशन एक फ़िक्स करते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमें फ्री कंसल्टेशन देते हैं बाहर के पेशेंट्स को, उनको कोई फ़ीस नहीं देनी होती इनिशियल, तो उसके माध्यम से उसका डायग्नोस्टिक का चार्ट बनता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम उसकी अर्जेंट है तो हम लोग उसकी वीज़ा लेने में हेल्प करते हैं, वो टिकट लेता है, यहाँ पर एयरपोर्ट पे हम उसको ट्रांसलेटर से देके उसको वेलकम करते हैं और उसको सीधा अगर अर्जेंट है तो उसको वहीं एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसको, उसकी फैमिली को। उसके साथ पूरा हमारा सहयोग रहता है एक मेडिकल टूरिज्म सेक्टर में कि वो आदमी कहीं भटके नहीं, क्योंकि वो हमारी कंट्री में आया है, गेस्ट है हमारा, तो उसको एक पूरे अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ उसका एडमिशन कराया जाता है और वहाँ उसका इलाज विदाउट एनी डिले स्टार्ट हो जाता है और उसको, पेशेंट को पहले ही कुछ आइडिया दे दिया जाता है कि उसका क्या खर्चा आने वाला है और वो हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देता है और उसका इलाज शुरू हो जाता है। जब इलाज ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसको थोड़ा टूरिज़्म की तरह उसका एंटरटेनमेंट करते हैं, ताजमहल लेके जाते हैं बहुत लोगों को, तो इंडिया के बारे में बताते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करते हैं लोग, लखनऊ जयपुर तक जाते हैं। अब आगे चल के हम हो सकता है उनको अयोध्या, बनारस, उस तरीके के जगह भी लेके जाएं जिससे कि टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले इंडिया में। कितने हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर? देखिए अभी तो ऑलमोस्ट सारे ही हॉस्पिटल, अगर हम मेजर हॉस्पिटल्स की बात करें जिसमें अपोलो आता है, मणिपाल आता है, फोर्टिस आता है, मैक्स आता है, मेदांता आता है, तो ये सारे हॉस्पिटल्स के पास अपना मेडिकल टूरिज्म का एक अलग ही यूनिट है, अलग ही एक लाउंज इन लोगों ने बनाया हुआ है हॉस्पिटल में। जैसे ही आप जाते हैं और इन लोगों को एक अलग अटेंशन मिलती है जिससे कि ये नॉर्मल जो इंडियन पेशेंट्स हैं उनके साथ ना वो हों, क्योंकि काफ़ी रश है हमारे हॉस्पिटल्स में। लेकिन इन लोगों के लिए हम लोगों ने हर हॉस्पिटल में एक अलग सेटअप बनाया हुआ है, उस सेटअप में इनको कंफर्ट आता है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है उसमें। हालांकि मेडिकल टूरिज़्म में अब बहुत आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ हॉस्पिटल्स की तो इवन प्रायोरिटी
मेडिकल टूरिज़्म इंटरनेशनल पेशेंट्स की भी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे सारे ही हॉस्पिटल मेडिकल टूरिज़्म की तरफ आएंगे और धीरे धीरे ये काफ़ी आगे बढ़ने की उम्मीद हम लगाते हैं। उसके लिए ही इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरीके की मीटिंग्स होनी बहुत ज़रूरी हैं और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू आगे चल के कुछ होस्ट करेंगे इस तरीके की मीटिंग, जिससे कि इस सेक्टर को और बढ़ावा मिले। अफ्रीकी देशों से भी पेशेंट आ रहे हैं, उसके अलावा CIS की कंट्रीज़ हैं, वहाँ से बहुत पेशेंट्स आते हैं। मेनली ट्रांसप्लांट्स के केसेस आते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इस कंट्री से किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, एक यंग पेशेंट था उसका। और इसके अलावा हमारे पास बांग्लादेश से बहुत पेशेंट आता था और बाकी भी कंट्री से आते हैं पेशेंट, तो हर जगह से आते हैं। और आप काफ़ी कुछ हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी थ्रू TCI एक PSU था इंडिया में 53 कंट्रीज और अफ्रीका काम किया था मेडिकल के बारे में, पूरा ऑल द इक्विपमेंट्स तो अक्रॉस यूरोप। नाउ वी कैन बी फोकस्ड ऑन आइवरी कोस्ट। देयर आर लॉट ऑफ PSU इंडिया फ्रॉम BL to CL to ITI TCL। उनको लेते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स फ्रॉम गिविंग लैपटॉप्स टू IT टू साइबर सिक्योरिटी, काफ़ी कुछ काम कर सकते हैं विच कैन बी इजिली हैपनिंग विदाउट गेटिंग इनटू टू मेनी एम्बिग्यूइटीज। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर काफ़ी कुछ हो सकता है। दिस कैन बी इजिली अ स्टेप जहाँ पे काम फास्ट हो सकता है विदाउट गेटिंग इनटू टेंडरिंग प्रोसेस, अदर प्रोसेसेस। ये काम काफ़ी इजीली हो सकता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इजीली देखिए जैसे इंडिया का अब देखिए UPI है, पूरे दुनिया में मशहूर हो गया है, फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड सब लोग इम्प्रेस हो चुके हैं। ऐसे बहुत चीज़ें इंडिया में है जो उन कंट्रीज़ को चाहिए और अफ्रीका तो वैसे ही बहुत हमसे पीछे है इन चीज़ों में है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, दैट कैन बी इजीली गिवन अ किक स्टार्ट, मेरा मानना है। भारत की ग्रोथ पर कितना कुछ असर पड़ने वाला है? नहीं, इंडिया तो देखिए इंडिया से ग्रोथ तो बढ़ ही रहा है वैसे, और ऐसी कंट्रीज हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम में आ जाएंगी तो काफ़ी कुछ काम होगा। दिल भी एक्सचेंज प्रोग्राम, एजुकेशन में काम कर सकते हैं, इंटरेक्शन प्रोग्राम यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है हमारे यहाँ हो सकता है। वैसे भी काफ़ी अफ्रीकन इंडिया पढ़ते हैं, बट इफ़ी को एवरी को स्पेसिफिक जाएंगे हम लोग तो काफ़ी कुछ एक्सचेंज हो सकता है उसके तरफ। इंडिया में टेक्नोलॉजी तो हाई, इट्स हब ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट अप टू द पावर ऑफ अमेरिकन कंट्रीज, बट फिर भी यहाँ पे कोई बुराई नहीं है जो हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट विल बी इजी किक स्टार्ट, ये मेरा मानना है। My question is, your main focus is African countries or others? Starting with Ivory Coast and countries around it, वैसा करने वाले हम लोग। Ivory Coast as a focus point and उसके आसपास जो कंट्रीज होंगी वहाँ पे एक्सपैंड करेंगे हम लोग। Yes, with clear focus on Ivory Coast right now, because जो बेटे वहाँ पे एक्सचेंज इनके साथ काम कर रहे हैं उनको फोकस करते हुए एक्सपैंड द टेरिटरी अराउंड दैट, ये मेरा मानना है। And government to government will give it a kick start. It will give an easy upstart. सर अफ्रीका के देशों में वहाँ पे डिफरेंस किया है, वहाँ पर यूरोप है, अमेरिका, अब कितना बड़ा चैलेंज है कि चैलेंज तो आएगा ही आएगा। जो कंपनी अदर प्लेयर्स प्राइसेस गिरते हैं, बट जहाँ पे गुड PSUs जैसे BL है, CL है, ITITs है, ये एस्टेब्लिश प्लेयर्स जिनका फोकस टू रीच एंड कस्टमर, नॉट मनी। मार्जिन आर देयर बट उनका पैसा कमाना इज मेन फोकस। उनका मेन फोकस है एंड कस्टमर तक पहुँचना, उनको लाभ पहुँचाना। उस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ हो सकता है। जो हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया फॉर दिस कंट्री हो सकता है, वैसा हो सकता है प्रोग्राम हो सकता है। यहाँ बना के मेक इट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहाँ जा सकते हैं लोग। जिस सवाल है कि मान लीजिए आपकी फ्लाइट है, फ्लाइट आप जो प्रोवाइड करा रहे हैं, अमेरिका, यूरोप या चीन प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्यों लिया? हमारी टेक्नोलॉजी एट पार, ठीक है। अमेरिका को छोड़िए, उनका कॉस्ट वैसे ही कॉस्ट भी होता है, जो कॉस्ट में 5 गुना महंगा हमसे होगा। अगर आपको कॉस्ट और टेक्नोलॉजी का करना है, तालमेल करना है, तो इंडिया विल बी एट पार। अब जो चीज़ 100 रुपये की वहाँ 500 की होगी तो 500 की तो अच्छी होगी, हमसे अच्छी होगी, सीधी सी बात है। मोबाइल फ़ोन 1000 रुपये का भी होता है, मोबाइल फ़ोन 5000 का भी होता है। तो व्हेन यू कंपेयर प्राइस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया इज एट पार विद दिस कंट्रीज। अब देखिए जो अमेरिका का माल आता है, चाइना से 1000 का माल भी होता है, 10,000 का माल भी होता है। एज यू पे मोर यू गेट द बेटर क्वालिटी, सीधी सी बात है। बट कीपिंग ए बैलेंस टेक्नोलॉजी एंड प्राइस, इंडिया इज एट पार। हमारा मानना है कि इंडिया हैज़ अ गुड फोकस टू रीच दिस कंट्रीज, और जहाँ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा इट विल बी किक स्टार्ट। जहाँ पे ज़्यादा टेंडर्स के होंगे इट विल बी एक्सचेंज प्रोग्राम लाइक दिस एंड द गेम इज ऑन। आप लोग MEA के साथ काम कर रहे हैं? हाँ, इसलिए काम करेंगे हम लोग ना। यस काम करेंगे। एम्बेसडर साहब जो है यहाँ के, विल गिव इजी एक्सेस टू जो प्रोटोकॉल्स कम हो जाते हैं जब ऐसी मीटिंग्स होती है, काम तो होता ही। आइवरी कोस्ट में
होता है, आइवरी कोस्ट शुरू करके जहाँ पर इंडियन एम्बेसी फिर देन आगे बढ़ूंगा। मैं इंडिया में है मतलब इंडियन एम्बेसी जो वो खुल जाएगी, मतलब वो तो आहिस्ता आहिस्ता, मतलब इट्स बीजेपी करंट गवर्नमेंट उनका रीच तो है ही है, और हमारा मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स में तो वैसे ही मेरा मानना है कि एट द प्राइस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया इज एट पार। नो डाउट। अब यही अगर काम जो है उनको बेहतर प्राइस हाँ उस मतलब देखिए, आईफोन लाख रुपए का भी होता है और फोन 20,000 का भी होता है। अब लाख वाला फोन तो अच्छा हो गया, तो कोई दोहराई नहीं है, बट अगर आपको उस प्राइस और टेक्नोलॉजी में चाहिए तो कोई गैप नहीं आएगा। तो होगा मतलब, क्योंकि हमने 10 साल पहले एक कंपनी TCL इंडिया में, उसने 53 कंट्रीज पूरी अफ्रीका को एक मेडिकल इक्विपमेंट दिया है, तो हमने यहाँ से दिया एज ए एड ड्यूरिंग अब्दुल कलाम के टाइम पे हुआ था ये। तो पूरे 53 कंट्री में गया था, करीबन 15 मशीनें गई थी यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए एड। जब तब लिया उन्होंने, मतलब ऐसे ही इन अवेयरनेस अदर। हाय, जस्ट वेट। Let's start. Yeah, hi. My name is Deepak Sharma. I'm the director of a company called Skylab Solutions India Private Limited, which is basically co-sponsoring this particular program in collaboration with our friends from Ivory Coast, WITEP. You know, my company is into technology. We are already partnering with a lot of state governments in India for the smart city project, which you all might be aware of. So we are already there in India, working with a lot of state governments to implement the smart city initiatives. Okay, and we are also present in Africa, Mauritius. Through Mauritius, we have moved to Ivory Coast. Okay, and I'm glad that a team from Ivory Coast is here in India to promote Ivory Coast as a destination for Indian investors, for Indian companies. Okay, to come and share Indian technical expertise, Indian managerial expertise, Indian financial expertise with Ivory Coast to forge a strong partnership between these two countries. You know, I don't know how much you know about WITEP. You know, WITEP is a Ivory Coast government initiative to promote Ivory Coast as a potential destination for foreign investment, including investment from India. So we have partnered with WITEP to channelize investments from India to Ivory Coast, and we ourselves are technological partners of Ivory Coast, and hopefully will be, after this conference, I'm sure some interest will be generated, you know, amongst Indian investors. They will get to know the opportunities in Ivory Coast and the kind of government thrust. Since there's a team from Ivory Coast present here, I'm sure they'll announce a lot of initiatives for Indian investors to come and invest in Ivory Coast. So that's precisely a brief background of this meeting. I'll be glad to answer any question which you have. Whole evaluation is government side here for particular this company, this organization? No. As of now, it's a private entity. So, but we are already working with the state governments in India as part of their smart city initiatives. You know, the smart city has multiple features, including smart transport solutions, smart waste disposal, smart electricity. You know, there are multiple dimensions into it. So we are working with state governments. We have the technology to support state governments, and the same technology we would like to collaborate with WITEP for Ivory Coast. आइवरी कोस्ट जो है इंडियन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है? Technology, smart cities, you know, the biotechnology. Basically, they are looking at technological solutions, right? In the smart city sector, in the biotechnology sector, in the technological sector, which they are looking from Indian investors.